अस्सलाम वालेकुम जी, नो फिल्टर विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने आपसे पहले भी ये बात अर्ज़ की थी कि नो फिल्टर जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लोग आते हैं, जो गेस्ट हैं वो अपने दिल की बातें करते हैं और उसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं होती, वो सिर्फ यह है कि उनके दिल में क्या है हमें सिर्फ वो पता होना चाहिए। तो मेरी आज की गेस्ट भी एक ऐसी खातून है जो कि इनको ये लगता है कि जो दिल में होना चाहिए इंसान को वही करना चाहिए, लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये व्हाट पीपल से वही बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो यही वाली की बात कहते रहते, तो लोगों का काम है कहना। इसी के लिए मेरी जो आज की मेहमान है वो है सैयदा नैना। तो हमारे लिए जी आज मेरे आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट और आई एम वेरी मच लकी इनफ दैट नैना इज़ हियर विद मी। और मैंने इनको कुछ महीने पहले ये कहा था कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं कराची होती हूँ इसलिए मैं लाहौर में नहीं आ सकती, और अब ये लाहौर आई तो इन्होंने मुझे कहा वेरी नाइस ऑफ हर। सो मेरी आज की गेस्ट है जी सैयदा नैना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। एक तो नैना का जो वर्ड है, मतलब इट कम्स अप विद आईज और कम्स अप विद, तो ये किसने, अम्मा अब्बा ने ये वाला नाम रखा या आपने कहा कि मेरे जैसा मेरा पूरा नाम है जी हसीब मोहम्मद बिन कासिम खान, तो मैं उसको छोटा करके हसीब खान किया और उसे छोटा करके HK कर दिया। तो आपका ये वाला कंसर्न क्या है? कोई ये फ्रॉम द पेरेंट्स साइड? So it's my mom named me Nana, excellent. and then so my father's very close friend, he thought ke my name is not Islamic enough. Oh, okay. So Well, hashtag Islamic enough. So he kind of changed it on my documents. okay. So since then I have two names, one officially which very few people know and very hardly I've been called by that, and the other one which is very dear to me because it's given by my mom, and I feel I can feel more connecting towards this because my mother gave it to me. Okay. And जो वर्ड है ये नैना, और नैना का जो कॉन्सेप्ट है आंखों से, सो यू सी द वर्ड फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, isn't it? it is. Because when I was just scrolling through your Facebook, there were many things that you do. For example, you're doing theater, you're doing voiceovers, well, whatever you can think of as an artist, you are doing those things there. And this is only being done when you do it from the heart. It cannot be done forcefully. What do you say about it? I would say from a very young age, I would say I have this very rebellious kind of a nature. Okay. And I do have an artist side of me. And when these both sides mixed up, our society. Okay, कुछ न कुछ बोलने लग तो कहेंगे तो लोगों ने कहना शुरू किया, and I started doing the opposite things, including my own family, which kind of, it was difficult, but it's something which is in me. I take decisions not instantly. I take decisions with a lot of thinking, but when I take it, it's unreversible. It's not reversible. So I've done a lot of things in my life which was not acceptable. Okay. From the society or the culture or even my parents or my family, because one, we are Sayyids, second, we are Pathans, so it's a deadly combination. Exactly. So yes, it was difficult, but it was fun. Okay. You are a Libra as far as How did you know? so How did you know? So being a Libra, you think that you do justice to the life that you have gone through or you are coming up with? As far as you are concerned, I'm not talking about people. I'm just talking about. I don't know what you think about Libra. Okay. Well, First, I should know na ke on what parameters you're thinking ke. I don't know. Because I am a Taurian and I believe कि Taurus के लिए बहुत different सी चीज़ें होती हैं। लिब्रा के लिए भी बहुत, मेरे कुछ स्टूडेंट्स लिब्राज हैं या बाकी लोग हैं, लेकिन हर एक बहुत एक डिफरेंट आइडियल्स के साथ होता है। कन्विक्शंस बहुत होती है, दे मोर मतलब दे हैव दैट कन्विक्शन कि अगर कुछ करना है तो वो बिल्कुल करके दिखाना है, और दुनिया जो मर्जी कहती रहे वो उन्होंने अपने दिल की बात सुननी है, और वही आई हैव सीन इन यू। सो व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू से कि
अगर नैना को कोई डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. Wow, that's a difficult one. It's quite difficult to describe me even for myself. Okay, we can say the naughty Naina, the niche Naina, the unique Naina, or the naive Naina. So we can. Well, I was naive. Okay. There was a time when I was naive, and that cost me a lot. So, being naive in this era, it's not at all sensible. Okay. Fine. I am naughty. Exact. Okay. I am unique. Okay. Yes. So the characteristics you told me about myself, I would agree, but not the naive one. Naive one is because you have moved from that naive one. But लोग हमें Yeah, I have learnt my lesson. Exact. Being completely naive, it's gonna harm yourself. I have this tattoo as well about this thing. Being naive is it's not good for anyone. ठीक. So it's actually devil's wing and tail with angel's hello. So you need to keep both sides in yourself to survive. I totally agree with you because मैं on a light note हमेशा लोगों को ये बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे 2 फरिश्ते होते हैं और एक फरिश्ता जो है वो अच्छी बात लिखता है और एक फरिश्ता जो है वो बुरी बातें आपकी लिखता है. तो अम्मा अब्बा आपको ये बात समझाते हैं कि बेटा हमेशा राइट वाले फरिश्ते ने लिखना है. तो ये वाला वेना ये फ्री बैठ के क्या करेगा और हो जाएगा. करेगा. तो इसलिए उसको भी थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए ताकि ये ज़रा जिंदगी ज़रा ईजी रहती है. और वही बात है कि आपको एक अपने बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है अपने लाइफ का. ओके, जब हमने फर्स्ट टाइम सोचा आपने एक्टिंग का तो घर में क्या हुआ? कोई आया? जब मेरे अब्बा ने तो मुझे बहुत मारा था. मेरे अब्बा ने तो मुझे बहुत तकीर की थी. अब्बा मेरे पुलिस में थे और उसके बाद हाफिज़े कुरान थे. तो दोनों माशाल्लाह वो Quite deadly. कॉम्बिनेशन था. तो उन्होंने बड़ी चपेड़ मारी. उसके बाद फिर उनको समझ आया कि नहीं इसने करना ही करना है. तो आपके पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से कुछ आया? So जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया था तो I was 6. ओके. And because of the decorum, तो वो क्यूटनेस आ जाती है ना उसमें. nobody talks about that type. I would say कि मेरी family का decorum was like this कि no one was bothered enough. Okay. ठीक है. My mother used to do her work. My father used to do his job. My elder siblings were like doing. So we are like we are very complex family. Like it's kind of unbearable complex family. So it was like always whatever I found in my life, I just started doing it. Okay. I started performing. I started having fun in this. What was the first performance that you did at 6? थोड़ा ही टाइम हुआ है अभी लेकिन कितना क्या किया था? It was like, देखिए मैं पहली दफा सच बता दूं. हाँ देखिए मैं जब पहली दफा गया था तो मैं स्पैरो बना था. मैं दरअसल बन के तो देखा दरख्त और स्पैरो इट्स ओके, इट्स फाइन, नॉर्मल सी बात है. तो देखे थी मुझे आखिरकार उस स्पैरो को एक दरख्त मिला जो यहाँ से हमने अपनी जिंदगी का आगाज किया और हमने अपने आर्टिस्ट वाली जर्नी जो है वो वहाँ से स्टार्ट की. लेकिन कमिंग ऑन स्टेज it's really something that gives a lot of confidence to you, isn't it? It is. So because of the family again, I would say, because my family is quite bipolar. Okay. So all of us have 2 different extreme ends of personality. So I do have anxiety. Some of you might have seen as well, but वो बेचैन रूह वाला कॉन्सेप्ट मेरी तो पीक पे जाती है शर्मीली ना. तो I have anxiety and sometimes it's very difficult to talk. Okay. Sometimes I kind of lose words, I stutter, but when I go on stage, it's a different you. I feel like flying. I never once yes जब मुझे थिएटर से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था and I was going through my divorce and after that when I went on the stage for the first time I fell. And I fell on the stairs. और funny चीज़ ये थी कि मेरी टांगे was like right towards the audience. ठीक है. It
not a pleasant sight to see, but I covered it in a way that I made it a part of the play. Okay. So a very few people, even my own sister, my elder one, she was asking, was that a part of what you were doing? I was like, yeah. No. So it was like, but I knew how to, cover it on stage in front of people, and they couldn't pick it. कि अच्छा ठीक है, this is something कुछ हो गया है. Beside that, I never, and I've done like hundreds of plays. क्योंकि इतनी छोटी एज से शुरू किया, almost सभी productions के साथ किया. अभी I am working with Shima ji. अरे वाह. I'm her student as well. तो डांस भी सारा. जी. I perform with her as a dancer. I act with her in her Tehreek, और उनके साथ उनसे डांस सीख के साथ करते. कैसा एक्सपीरियंस कैसा है? Because we've been seeing Shima ji for at least about 3 decades. तो मुझे हो गए 4 decades वो देखते हुए, and she is mashallah with the same charisma that she has, और वो माशाल्लाह जो dynamism and vibrance that she has, that's amazing. Well, experience, that's so homey. She's like my mom. She's not like my mom. She is my mom. Okay. Even she now recently तो हमसे, because we kind of have some kind of resemblance maybe. ठीक. तो people whenever we go anywhere, तो people do ask कि ये कौन है मैम से, तो शीमा जी मेरी बेटी है. That's it. That's like, that's it's we're very close, and I love her. She loves me. That's शीमा जी की कोई एक ऐसी बात जो आप समझती है कि आपके अंदर होनी चाहिए? मेरे अंदर होनी चाहिए. मतलब आप तब देख रहे हैं. Her fierceness. Okay. I feel कि मेरे अंदर भी कम है. I have to get more from her. चलो सही, तो अच्छा है. अच्छा, you talked about कि बहुत से लोग जो हैं वो भी थिएटर में, जिस तरह हम थिएटर, जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं वो इस बात से, मेरी बात पे यकीन भी कर लेंगे और बात को मानेंगे भी कि जब आप थिएटर पे जाते हैं, यू आर अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एट दैट टाइम. सो हमारे जितने बच्चे हैं जो टीन एजर्स हैं और उनको ये लगता है कि उनको थिएटर करना चाहिए, व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू कैन गिव टू दोज पीपल देयर, द लड़के लड़कियाँ, क्या करना चाहिए उनको ज़िंदगी में? और वो हर कोई जहाँ पे पैसे कमाने की बात करता है, तो ये आर्ट वाला कीड़ा कहाँ से, उसको कैसे सैशिएट किया जाएगा और क्या किया जाएगा? Well, इस चीज़ पे there are a lot of different aspects to talk about. One, कि जो हमारे न्यू बच्चे हैं जो थिएटर सीखना चाहते हैं, प्लीज़ focus on learning first. ठीक. क्योंकि यहाँ पे मैंने अब मैं लाहौर से हूँ, मैं यही पैदा हुई, यही पली बड़ी, बट अब from last 3 years I'm in Karachi, and the one and only हमारा जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है नेपा जी. I have seen a lot of people, मतलब I'm not saying कि वो कोई बुरा इंस्टीट्यूट है, but I've seen a lot of बच्चे जो शायद पहले दूसरे साल के बाद they feel like they know everything. Yes. They are actually blocking the window कि वो और सीख सकते हैं. ठीक. This is the worst thing any artist, any actor, any person can do to themselves. ठीक है. मुझे सब पता है. हाँ, मुझे सब आता है, और they are actually blocking that window which is so special for everyone कि आप, there's always room to learn. Always. ठीक. Second, जहाँ तक पैसों की बात है, this is something which I have my own self have faced. I have done, मैंने फ्री का काम बहुत किया है. माशाल्लाह मेरी बारी क्योंकि हाँ, बहुत हमें बच्चों को सिखाते ये थे कि भाई थिएटर में तो पैसे नहीं मांगते, ये तो रो की गज़ा है. ठीक है, ये तो आर्ट है, आर्ट के पैसे. भाई आप बच्चों से काम करवा रहे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा पे ना करें, आप उनको कुछ तो पे करें. हाउ विल दे गेट मोटिवेशन कि वो इसको आगे सीख के कंटिन्यू करेंगे? ठीक है, जब उनको पता चलेगा कि आगे जाके हमने कुछ इंडिपेंडेंट भी होना है, कहीं अपनी फैमिली भी देखनी है, कहीं घर पे भी कुछ देना है, बीइंग ऑन वेरी रियलिस्टिक ग्राउंड्स, और वो पूरा दिन आपके पास रिहर्सल करें 1-1.5 महीना, फिर आपके प्लेस करें और वो रूह के गज़ा खा के बैठ जाए. तो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर लाइक ऑपरेटेड. बोतल पे नहीं चलते जी, का नहीं चलता. इसके ऊपर कुछ बी सेंसिबल. सेकंड, yes, it's not a well paid job, but
इफ़ यू हैव दैट मोटिवेशन इन यू, तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो आपको कुछ पे करेंगे. ठीक. आप वहाँ जाएं, आप उनसे सीखें, आप उनके साथ काम करें. यू गुड टू गो जो आपको कहता है कि जी आपको पैसे नहीं मांगने चाहिए और आपने पैसे मांग के कुछ गलत कर लिया, आप उनके साथ काम ना करें. आई वुड नेवर आस्क एनीवन टू डू फ्री का काम, ठीक. बिकॉज दैट्स अ वेरी स्ट्रेट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, ओके. दा टीवी पे पहला कदम कब आया, कैसे आया? It's another very funny story. I was doing theatre और हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट थे वहाँ पर, और उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा ओह वो ये क्या हो गया. उनकी कोई एक्टर थी जो लास्ट टाइम पे वॉकआउट कर गई थी, और वो एक्टर थी जो रीएनेक्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ से. उनको मैं देखी, उन्होंने कहा एक काम करोगी. मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि इस तरह से एक रीएनेक्टमेंट है वो कर दो. ठीक. मैंने कहा अच्छा कर देती हूँ. आई हैड नो आइडिया. आई वॉज अ वेरी स्पोर्टी गर्ल. आई यूज टू प्ले 11 स्पोर्ट्स ऑन डिफरेंट, मतलब टिल नेशनल लेवल मैंने खेली हैं. और अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशन मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो ठीक है, मुझे कैमरे पे आके काम करने का कोई वो नहीं था कि मैंने काम करना है इस पर. थिएटर किया हुआ था, तो दैट वाज ओके. हाँ, मैं थिएटर करती थी बिकॉज आई लव डूइंग इट, थिएटर. खैर मैं चली गई, मैंने वो किया, और उसके बाद वहाँ पे सो द स्टोरी वाज अ लिटिल डिफ़िकल्ट. वो एक खातून की कहानी थी जो अपना दिमाग तवाज़ुन खो बैठी थी. उनके भाइयों ने उनको 21 साल कैद करके रखा फॉर द प्रॉपर्टी एंड ऑल. देन इवेंचुअली जब उनको बाजियाब करवाया गया तो शी हैड बेड सोर्स और उनके शी हैड मैगट्स. शी वाज अलाइव, शी वाज इन हॉरिबल स्टेट. तो आई हैड टू प्ले दैट कैरेक्टर. I played it. I was not thinking अच्छा ये रीएनेक्टमेंट है, ये थिएटर है, या ये टीवी है. I just played it as I would play that character anywhere. ना? तो वहाँ पे एक सीनियर गेटअप आर्टिस्ट थे, and he asked me कि टीवी पे काम करूँगी, and I was like कर लूँगी. अरे कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह भेज रहा हूँ, वहाँ जाओ और बस उनको बता देना कि मैंने भेजा है. मैं कहा ठीक है. I went there. और उन्होंने जाके मुझे 2 स्क्रिप्ट्स दिए और उन्होंने कहा कि ये दोनों आप रेडी कर लें. मैंने वो किया और उसके बाद उन्होंने वो रिकॉर्ड किया. उन्होंने मुझे उसी वक्त कहा कि आपने इस डेट को यहाँ आना है, ये आपके शूट डेट्स हैं. मैंने कहा ओके. मैंने वेंट बैक, सम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम थिएटर दे आस्क्ड कि किधर गई थी, एंड आई टोल्ड देम. दे वर लाइक डू यू हैव एनी आइडिया तुम कहाँ से होके आए हो? ऐसे नहीं. सही. And that production house was of Kashif Nisar Saab. He was the first one जिनके साथ मैंने काम शुरू किया. And then I did like 3-4 projects with him. मेरा पहला उनके साथ प्रोजेक्ट था मिस्टर एंड मिसेस शमीफ. एक छोटा सा कैरेक्टर था मेरा. और कौन सा कैरेक्टर था वो? उस्मा हसन की मेड का, जिसका अफेयर होता है साकिब के साथ. ओह अच्छा अच्छा. सो आई वाज दैट. एंड वहाँ से अभी उसका शूट कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड ही ऑफर्ड मी दिल ना उम्मीद तो नहीं. आई थिंक हम उसमें भी थे जी, है ना? मैं मिस्टर शमीम में भी था, लेकिन हमारी काबली पुलाव. बिल्कुल. तो ऐसा है क्योंकि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है ना जी, वो काशिफ भाई है. काशिफ निसार साहब के साथ है, तो काशिफ निसार साहब का था, क्योंकि उसने हम जितने आर्टिस्ट हैं और उन्होंने लाहौर में उनको वो सारा काम करके दिया हुआ है. दैट्स अमेजिंग. you know, it was a little difficult for me when I went to Karachi. अब कराची में काम का डेकोरम थोड़ा सा चेंज है. आई एम नॉट सेइंग कि कुछ गलत है ऐसे ही, बट काशिफ साहब का काम का तरीका इज वेरी रॉ, वेरी क्लोज टू रियलिटी. इवन इफ ही डजंट वांट मेकअप ऑन दिस कैरेक्टर, तो वो मुंह धुलवा देंगे. ही वुड बी लाइक कि बस ये कैरेक्टर जो है ना, ये कैरेक्टर दिखना चाहिए. व्हेन आई वेंट टू कराची, आई वाज डूइंग अ प्ले एक बड़े चैनल के साथ, एंड इट्स अ फनी थिंग कि आई हैड टू प्ले अ कैरेक्टर जिसमें मेरे भाई की डेथ हो जाती है. एंड भाई की डेथ के 2 दिन बाद मैं बैठी हुई रो रही हूँ और मुझे वो याद आ रहा है. एंड यू नो, आई डोंट यूज दैट glycerine and anything. So I take 2 minutes and I cry by myself. So I'm in that phase and I'm crying. And then suddenly makeup artist की आवाज़, okay. I was like, वांटेड हो गया.
And I was like, यार Exactly. सही. बाल टेढ़े हो गए थे, मेरा भाई माना हुआ टेढ़े हो गए तो हो गए. But the thing was कि then I understood another side of our industry, which is commercial side. And nothing is wrong with that. Because, you know, एक audience है हमारी who wants to see the real stories and reality. Real reflections of the society. हाँ, and the other side wants to see the glamour. Oh yes. Everything dolled up, everything so, you know, made up. So we need to cater all of these people. So that Okay. there. कौन सा ऐसा काशिफ भाई का प्ले था जो that was more close to your heart? मैंने कहा यार ये मुझे I have given my 100% here or 90%, 80%. Well, आहिस्ता आहिस्ता because I can see the transformation of what काशिफ भाई came up with, started up with this one, फिर इनका एक एक सीन करते 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 then you moved on to काबली पुलाव and then वो पूरी पूरी उसी तरह का एक कहानी आपके ऊपर पूरी आ गई है and then you take up with everything. तो कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा दिल के करीब है? I wouldn't say the character. I would say the play, which I feel कि इन तीनों चारों में से जो project मुझे लगता है कि I can connect with that project more is काबली पुलाव. ठीक. Because I was not in state to act at that time. I recently lost my father. और मैं कराची से लाहौर आई हुई थी और ठीक. I was in a very bad state. And then मुझे ये offer हुआ and I was kind of like thinking कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये कैसे करूँगी? And then the belief Kashif bhai had, Oh yes. and then the way they all took care of me, including the cast and Sham bhai and everyone. Because मुझे तो I was in that state कि मैं कभी भी बैठ के I used to start cry and मैं बहुत बुरी तरह रोती थी. Oh ठीक. और ऐसा भी हुआ कि हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, बाहर गर्मी में धूप में कैमरा लगा हुआ है. आई स्टार्टेड क्राइंग एंड काशिफ भाई वाज लाइक डोंट से एनीथिंग टू हर, लेट हर क्राई, लेट हर टेक इट आउट. और कैमरे पे कपड़ा डाल के सब खड़े हुए हैं. नो वन वाज आस्किंग मी कि चुप कर जाओ एंड वी ऑल आर स्टैंडिंग और कैमरा लगा हुआ है. नन ऑफ दोज पीपल आस्क्ड के you shouldn't do this. It's not professional or anything. I felt that those people they cared, and it's kind of, this is the reason, and obviously Kabli Pulao took another tool for me that you know, it gave me another identification. एक paradigm shift था. हाँ. So it have a lot of, you know. और आप एक और बड़ी मजेदार बात है कि काशिफ भाई की बात को, that's why he is काशिफ निसार. That's like डायरेक्टर होते all praise for काशिफ भाई जी. काशिफ भाई के साथ हैं. हमारे लिए नैना, एक जो एक्टर्स होते हैं, जो स्टेज के एक्टर्स होते हैं, ये मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये वाली गलती मैं करता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जितने भी स्टेज के एक्टर्स होते हैं वो मास्टर शॉट बहुत अच्छा देते हैं, और जब आप क्लोजअप की बारी आती है तो वो ऐसी की तैसी हो जाती है. उसके लिए क्या करना चाहिए? उसकी वजह ये है कि हमारे जो थिएटर के लोग हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है. सही. बिकॉज इट्स, अगर आप थिएटर देखें तो इट्स अ वेरी वाइड स्क्रीन जो आप जाके देखते हैं, एंड एवरीथिंग इज लाइक, आपको कुछ भी क्लोजअप में नहीं दिखेगा. ठीक है. तो जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो उस पे काम उस हद तक नहीं करते. ठीक है, तो क्या करना चाहिए अब? काम करें. लेकिन क्या ज्यादातर हमारे साथ होता ये है कि मास्टर शॉट हम क्योंकि इतनी वाइब्रेंस के साथ दे रहे होते हैं कि ओ हो बहुत कमाल, लेकिन जब वो शॉट आता है आपका क्लोजअप, उसके ऊपर आके जरा इधर उधर चीजें निकल जाती हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? आई थिंक कि उसके लिए यू सी, एक तो व्हेन यू फील एनीथिंग ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके फेस पे ना, अनलेस अंटिल यू जस्ट playing it. If you're feeling it, वो आपकी बॉडी में भी आएगा, वो आपके फेस पे भी आएगा, वो आपके हर जगह से निकलेगा. You will become that character. Fine. म्यूजिक सुनती हैं? Yes. और मूड के मुताबिक म्यूजिक होता है या एक ही तरह का म्यूजिक जो है? नहीं, मूड के मुताबिक. आप शीमा जी की अगर आप बात करें तो फिर तो आप क्लासिकल से लेकर और आप ये वो ब्लॉकबस्टर तक का जो भी कोक स्टूडियो वाले गाने हैं, तो ये पूरे का पूरा टाइम उसी तरह चलता है. मैं बचपन से ही
क्लासिकल बहुत ज़्यादा सुनती थी, बहुत पसंद था। मतलब बहुत छोटी एज से क्लासिकल सुनती थी, घर में सब मजाक उड़ाते थे कि ये फिर बाबा लगा के बैठ गई है। ठीक है। तो बस वो सुनती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। द सेकेंड genre I would say is के जो हमारे 80s 90s और अर्ली 2000s के बॉलीवुड हिट्स हैं जिसमें स्पेशली गोविंदा की सारी जो वो तो आप उनको सुनती थी, मैं तो नाच के दिखाता रहा हूँ। हम आज भी नाचते हैं, हम आज भी नाचते हैं उसके ऊपर। वो दिस इज समथिंग जो मेरा फन टाइम होता है। इसके अलावा आई लव ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक्स, मतलब इट्स मोस्टली अबाउट हाउ आई एम फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ मूड आई एम इन। साइकोलॉजी पढ़ी आपने, और साइकोलॉजी के साथ में लगता है कि लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस, लोगों का बिहेवियर, हम ज़्यादा जो पढ़ जाते हैं ये वो उसको देखने लग जाते हैं। तो आपको देखकर कुछ होता नहीं है कि इसकी तो सारी चीज़ें मुझे पता है, ये क्या मेरे दिमाग को कर ये क्या कर रही है, ये नहीं होता? किस बारे में? ऐसे ही लोगों को जब जज करने के बारे में, या लोगों को सोचने के बारे में, या समझने के बारे में होता है? Well, if you have got a degree or if you have studied about anything, I'm sure the people around you, they are also working on themselves. Oh, exactly. ये उनको भी पता है कि हम आपको कैसे बेट करना। ये 100% correct, and you can never get के exactly ये बंदा क्या सोच रहा था। हाँ, you would get the idea के Behavior से और action हाँ कि there's something fishy. Okay. Yeah, this is not what she's saying or he's saying. तो इतना idea हो जाता है, but वो इल्हाम तो नहीं आ सकता। कोई कैरेक्टर ऐसा नैना जो कि करने का दिल चाहता है, यानी कोई ग्लैमरस, या एक कोई जो कि जिसमें एक्टिंग का बहुत काम हो, एक्टिंग का मार्जिन बहुत हो, वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो? Oh, I played this. So it's a character from a play theater. अभी मैंने last year किया Waiting for Godot. If you have read that play, उसमें जो फीमेल है हमारी, हम क्योंकि वो अडाप्ट किया हुआ है हमने, तो हमने उसकी कैरेक्टर्स थोड़े से चेंज किए हैं। तो जो ओरिजिनल प्ले है उसमें दोनों मेल कैरेक्टर्स हैं। वैसे हमने जो किया है उसमें एक मैं थी और एक मेल था, एंड दैट्स द कैरेक्टर विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई फील लाइक इट्स नॉट एनीथिंग जो so it's a vibrant character. I will show you the get-up after our podcast. ठीक. And मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरे दांत तक उन्होंने काले कर दिए थे. I was looking like anything. I was so happy अपना get-up देख के कि कितनी मज़े की ट्रांसफॉर्मेशन किया. And so we had 2 plays in that. हमारा जो क्या होता है ये फेस्टिवल थिएटर फेस्टिवल में हमारे 2 plays थे. Or the other play I was playing character of life, which is very beautiful and vibrant, and my hair were done and I was wearing a floral pink dress and I was dancing, and the other character was like एक तो देखना नहीं चाहते, एक को देखना चाहते. It was like 2 different sides, and जो लोगों ने देखा वो इतना they were like shocked कि एक ही बंदी थी. यार बहुत मज़ा आया मुझे. So I actually like to, so one of the things which I would say about myself, I would disclose, is that I love to make people uncomfortable. मैं तो उसके ऊपर I love to see their faces when they're like so uncomfortable around me, and they're like ये क्या है ना, and I'm like I'm loving that thing. I stand on my ground there and I'm like okay, that's अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सी ऐसी चीज़ों के ऊपर, हम कलर के ऊपर और एक अपने मोटापे के ऊपर बात कर रहे थे अभी जब हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट की थी. तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वो ये होता है. तो क्या ये हमारी इस दुनिया के अंदर ये सब चीज़ें हैं और हम इसको कैसे कैटर करते हैं? क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल you have to get a thick skin. ओके. एंड वो कितने साल में होती है थिक स्किन? इतने तक चलते जाते हैं और उसके बाद यू कम अक्रॉस कि अच्छा लाख भेजो दुनिया के ऊपर क्या बकवास कर रही है, हम ओके है जो हम कर रहे हैं. ये स्कूल में नहीं होता, लेकिन ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी. Well, it's another story that I used to get bullied a lot
I have told about this in my different podcasts. And ये I have been bullied a lot about this, not in my childhood. अभी तक भी हमारी इंडस्ट्री में भी हो जाता है. ऐसे ही है. और मजे की बात कि I was never bothered about it because I was in sports. sun exposure होता था इतना ज़्यादा. मैं सनबर्न कर कर के मैं पर्पल हो जाती थी. इतना सनबर्न होता था क्योंकि धूप में पूरा पूरा दिन खेल रहे हैं. सही. And I was never bothered about it. I was like, fine, ठीक है. पर ये आजकल के बच्चे अगर ये उनको ये सब चीजें It's उस टाइम पे भी I would say कि it's not something which is pleasant and not Exactly. everyone is like that कि क्योंकि I'm not saying कि मैं कुछ महान थी. मेरा फोकस वहाँ नहीं था. मेरा फोकस कहीं और था. ठीक. I was totally into sports or the the shits about my family because it was so disturbed कि इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता था कि वो मेरी स्किन का कलर क्या है. क्या ठीक. ओके ठीक है डन. समझ आ गई. अच्छा my और क्वेश्चन. You believe in love at first sight? You love at many sites. I do not believe in love at first sight. हाँ. Many sites. बार-बार आपको 360 डिग्री पे देखना चाहिए. हाँ मतलब उल्टा पुल्टा के अंदर से उल्टा सब कुछ देखना चाहिए. टेस्ट करने चाहिए. को 72-73 टेस्ट होने चाहिए. Exactly. इंसान का बच्चा है कि नहीं है. ठीक है. Exactly. ये जो love at first sight है ना, ये तो आपको टीनेज में कहीं जाके होके खत्म हो जाता है. ठीक है. पहली बात. ठीक है. And I won't blame anyone. It's the puberty और आपके hormones इतने ज़्यादा पीक पे जा रहे होते हैं कि आपको सब ही अच्छा लग रहा होता है. ठीक. मतलब now when I look at my pictures जो मैं टीनेज में थी, I look ugly as F. लेकिन वो तो सबके साथ यही कहा. हम जब लेकिन वही ना, लेकिन लानत है हमारे पे कि क्या. लेकिन जब हम उस एज में होते हैं तो हमें अपने आसपास भी लोग पसंद आ रहे होते हैं. हमें अपना आप भी अच्छा, पता नहीं हम कौन से ख्यालों में होते हैं जहाँ हमें ये सब फील हो रहा होता है. बट लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता. ठीक है. लस्ट एट फर्स्ट साइट हो सकता है. अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट हो सकती है. अफेक्शन भी नहीं हो सकती बिकॉज अफेक्शन ऑल्सो नीड्स टाइम. ठीक है. ओके. हमारे टीनेजर्स बहुत से देख रहे होंगे या जो कि जवान लोग हैं वो इस पर देख रहे होंगे. तो कोई रिलेशनशिप की कोई एक फंडा जो ज़िंदगी में समझ आता है कि लोग ज़िंदगी में अगर दो लोग इकट्ठे हैं तो उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. रोला वो पड़ जाता है ना कि लोग कहते हैं कि जी अगर इससे कोई बेहतर मिल जाए तो चले ठीक है. हर कोई को बेहतर की तलाश में होता है. उसको आइडेंटिफाई करने में unless you stop looking. इसलिए नहीं कि हिम्मत ही हार गए, इसलिए कि you feel satisfied कि I think this is the right person. ठीक. Keep looking. Because the right person will always be on your right, so you need to keep looking on the left. Left as well ना, side से. तो वो साइड पे लेफ्ट आते रहेंगे. वो बिल्कुल ठीक है. आपके साथ मिली जो है वो चलते जाए. 5 years down the line है ना, कहाँ पे देखती हैं अपने आप को? डायरेक्शन में आना चाहेंगी, प्रोडक्शन में आना चाहेंगी, या एक्टिंग के साथ ही यू आर ओके विद दैट? Well, so अगर मैं अपना पर्सनल गोल बताऊं, please no offense to anyone, because I'm working here. But अगर मैं आपको अपना इंटरेस्ट बताऊं तो my goal was never to be a good or a famous actress of Pakistan. I do want to explore different industries outside of our country. I do want to explore because when you see the work from the other side or from from the West or anywhere, you would see the depth. Yes. And you would, as an artist, as an actor, you would definitely have that urge. Yaar, I want to do this. I want to play this. I have that urge. I do want to do that. I think I can and I'm able to because I'm not someone who is like overconfident, but I think I have that capacity to do that. ठीक. एक्टिंग भी सिखा रही हैं आप कुछ जगहों के ऊपर और आप लोगों को बता रही होती हैं कि जी ये दिस इज़ अ गुड प्रोफेशन के अंदर आना चाहिए, उसमें ये लर्निंग करनी चाहिए. और उसमें एक और चीज़ जो बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है अब, क्योंकि जब आप वो तहतो लफ्ज़ में कुछ चीज़ें पढ़ रही होती हैं, आपके फेसबुक के ऊपर वो आते हैं और उनमें दो डिफरेंट आप कोई कहानी सुना रही हैं या आप कोई एक मोनोलॉग हो रहा होता है, तो दैट्स रियली नाइस. सो उस तरह के बच्चों को वो चीज़ें बतानी और अपना एक्सेंट डेवलप करना या एक डायलेक्ट बनाना, वो ये सब चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं. सो हमने जो कुछ भी सीखा बहुत टाइम लगाकर बहुत डिफरेंट जगहों से सीखा. कोई एक जगह पे हमें एक सिलेबस या एक जगह से सब कुछ नहीं मिलता. आई हैव actually created a
course outline which is about enunciations. Okay. So basically enunciations are हम जो भी ज़ुबान बोलते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और हमारे जितना भी ऑर्गन है अंदर से, ज़ुबान है, हमारा तालू है, हमारे लिप्स हैं, ये एक ख़ास तरीके से मूव करते हैं. ठीक. हमारा हलक स्पेशली जो भी लैंग्वेज होती है उसका एक ख़ास तरीका होता है जिसमें हमारे ये सारे ऑर्गन्स एक डिफरेंट वे में इन्वॉल्व होते हैं. उसको सीखने का जो तरीका है, आई हैव डिज़ाइंड अ कोर्स अबाउट इट which I have never found anywhere else. I don't know if there is anyone which is very good. So I actually teach that, which I feel it's very difficult. It's very important. So the basic thing about in this course is focus. Okay. And when you get that focus, you can develop that accent or dialect और जो आपका तलफ़्फ़ुज़ है और आपका जो आपकी लैंग्वेज में बहुत सारे हमारे आम लोगों के रेड़े अटते हैं. ये लाहौर वालों के तो बहुत ज़्यादा बहुत भी अड़ते हैं तो बहुत ही कम. हमारे तो अड़ते हैं बट तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे आसपास के लोग बहुत सारी देयर फेसिंग डिफ़िकल्टीज. तो आई थिंक दिस कोर्स कैन हेल्प देम अ लॉट. ठीक. बच्चे जो एक्टिंग करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें किसी हर जगह पे हम जाते हैं और हमें कोई कास्टिंग काउच मिल जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो मैं उनको ये बात कहता हूँ कि आपके पास आप सोशल मीडिया पे अपनी सारी परफॉर्मेंसेस लगाते हैं एंड यू जस्ट सेंड इट टू द पीपल देयर. सो इज इट ओके विद दैट, और ये कास्टिंग काउच वाला रौला होना ही होना होता? इट्स नॉट अबाउट होना ही होना होता है. सी एवरी इंडस्ट्री हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स. हर जगह के कुछ ना कुछ अच्छी बुरी साइड्स होती हैं. हमारी इंडस्ट्री की भी. आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरी से बुरी है या ये बिल्कुल ठीक है सब कुछ. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. द थिंग इज़ कि एक शॉर्टकट होता है और एक आपकी स्ट्रगल का जो टाइम है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है. पर जब आप उस टाइम से गुजर के जाते हैं जहाँ आपने पहुँचना होता है तो आप दूर से दिखते हैं क्योंकि आपको वो रगड़ा लग चुका होता है. सही. Try to avoid these shortcuts. I'm not judging anyone. I don't judge anyone. It's all up to you. But try to avoid those shortcuts ताकि आपको टाइम से पहले वो चीज़, जब हमें किसी वक्त से पहले कोई चीज़ मिल जाती है ना, हमें उसकी अहमियत नहीं होती है. ठीक. जब हमें एक्चुअल अर्न करके वो चीज़ मिलती है ना तो हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं. सही. बस. Okay. Your favorite actress? My favorite actress? There's a lot. ज़्यादा किसमें आप बॉलीवुड, हॉलीवुड या पाकिस्तान, कोई तीनों ही बता दें. So here I think in mainstream I like Sabaa a lot. I think she have a lot of sides of. So this is something, she's very versatile. I like her. Okay. I like Bollywood में. In Bollywood there are a lot of good actresses. हाँ, लेकिन एक अपने दिल में होता है सुनी ये क्या है. Honestly बताऊँ, I don't feel this way about anyone. Okay. कि ये सोनी है या मतलब everyone's beautiful. Like I feel कि हाँ यार ये इसका ये काम बहुत खूबसूरत है. My first crush was Mr. Bean. My life's first crush was him and I was in love with him. Like literally I was in love with him. क्योंकि क्रश के अंदर आपको वो रीजनिंग नहीं होती, इसलिए मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा. No, if you have seen Robin with like outside of this Mr. Bean wala character, he was a very beautiful man. हाँ. और अभी recently मैंने जब उनको देखा तो he was old and all grey hair. जो दो लोगों को recently देख के ऐसे feel सा हुआ कि यार they're growing old, which is kind of I don't mind, but अच्छा, पाकिस्तानी मेल एक्टर्स में से कोई जो आपको लगता हो कि यार हाँ ये अच्छा काम कर रहा है लड़का, ये इस लड़के में कुछ दम है? ठीक है, बस हैं वो. उनको हमने बताना नहीं है, वो आप खुद समझ ले जिन लोगों को कह रही है ना. हम देखिए सभी बहुत अच्छे एक्टर. बिल्कुल. मैंने यही काम करना है. सभी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं.
लेकिन ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला है कि सबके अंदर, हर इंसान में रूम होता है कुछ बेहतर करने का, तो वो कभी भी कोई भी कर सकता है. ठीक. एक हमारे टीनेजर्स हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, टीनेजर्स बच्चे जो आते हैं उनकी ज़िंदगी में एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, एंड दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम लाइफ. So what is the message that you can give to those kids to just live your life like anybody can, and just it would be a good experience for them, whatever? I won't say it would be a good experience or It would be bad an experience. cruises. It would be an adventurous. Okay. See, अगर सब कुछ बहुत अच्छा हर वक्त अच्छा होगा ना तो बोर हो जाओगे. ठीक है, तो there would be a lot of times where you feel like यार ये तो बस ये worst time है, and then the other time when you face any hardship तो you will face कि अच्छा यार वो वाला तो बहुत easy था. This is the hardest one. The thing is कि I'm not blaming anyone about this anxiety and depression and expectations. It's about the हमारा जो mindset बना देते हैं ना शुरू से. फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से कि हमारे माशरे में पेरेंट्स को लोगों ने इतना आइडियलाइज़ कर दिया कि वो इंसान से हटके एक अलग हमारे लिए ना एक पर्सनैलिटी बन चुके हैं. सम काइंड ऑफ ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस काइंड ऑफ वो एक बन चुके हैं कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट हमारे पेरेंट्स से कोई गलती हो जाए. इवन हमारे पेरेंट्स कैन नॉट एक्सेप्ट कि हमसे कुछ गलती हो जाए क्योंकि हम तो माँ बाप हैं. ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. Give your parents room to do their errors, na? Because they're also human beings at the end. And your life is a life. It's not a movie. You will face hardships. You will face shitty moments. You will face you want to die, but you again get up and you face another day. That's a progress. ठीक. Live it. And I would say just never lose hope. Great. Thank you very much, Nana. It was a pleasure talking to you. And मैंने अभी एक बात की कि जी अपने अम्मा अब्बा को रूम देना चाहिए, और पाकिस्तान की जितनी आबादी है हम अब्बा को पूरी हम अम्मा को उनके कामों में रहना चाहिए. उनके हिसाब से देखना चाहिए. एक और बात इन्होंने बहुत अच्छी की कि आप जिंदगी की एक ही तरह की गुड एक्सपीरियंसेस नहीं होते, ज़िंदगी के बैड एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर एक्सपीरियंस सारे होते. आप देखिए कि अगर हम ईसीजी कराते हैं तो ईसीजी की एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है दैट यू आर डेड. लेकिन अगर ज़िंदगी का उतार चढ़ाव चलते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई कभी कहीं ऊपर है और कहीं नीचे है, तो ये ज़िंदगी है और इसी तरह ही ज़िंदगी चलती रहेगी. सो मुझे भी यही लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को सिर्फ लिव करना चाहिए, और हमारे लिए वो लिविंग में क्या होता है, वी नीड टू लिव द मोमेंट्स, और जो हमारे सामने आ रहा है उनको उसी तरीके से उनको लिव करें और देखें. हमारे पास एक्सपीरियंसेस होने चाहिए. मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास 60 साल में अगर अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानियाँ नहीं हैं, बोरिंग लाइफ, तो प्लीज़ अपनी वो कहानियाँ और अपने वो मोमेंट ज़रूर बनाएं. मुझे नो फिल्टर से इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे एक नए वाइब्रेंट गेस्ट के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.